مطلب میں اپنے ہی بچپن سے سوری کرنا چاہتی ہوں کہ اگر میں نے شاید اس وقت بات کر لی ہوتی I would be a different person. سوچیں ذرا، ایک ایسی بچی جس نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا، جس نے غربت اور تنہائی میں پروان چڑھتے ہوئے یہ ٹھان لیا کہ وہ اس دنیا میں اپنا نام لکھ کر جائے گی، اور پھر اسی بچی نے ایک دن پوری قوم کے دلوں پر راج کیا۔ لیکن یہ سفر صرف چمک دھمک نہیں تھا، اس میں درد تھا، دھوکے تھے، بدنامی تھی، آنسو تھے اور ایسے راز تھے جو اس نے برسوں اپنے سینے میں دفن رکھے۔ آج میں آپ کو وہ کہانی سناؤں گا جو ابھی تک کسی نے مکمل نہیں سنائی، عائشہ عمر کی اصل کہانی۔ ان کی پیدائش سے لے کر آج تک، ان کی کامیابیوں سے لے کر ان کے سکینڈلز تک، ان کی خوشیوں سے لے کر ان کے گہرے زخموں تک۔ تو آنکھیں کھول کر بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کو آخر تک اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دے گی۔ میں بھی بلی ہوتی تھی، میں بھی ایک ٹائم پہ ایک نیو کمر تھی، میں بھی ایک ٹائم پہ ریکگنائز نہیں تھی اور بہت بری طریقے سے لوگ بات بھی کرتے تھے۔ 12 اکتوبر 1981 کا وہ دن جب لاہور کی مٹی نے ایک ایسی بچی کو جنم دیا جو آگے چل کر اس شہر کا فخر بننے والی تھی۔ مگر عائشہ کی زندگی کی شروعات کوئی آسان کہانی نہیں تھی۔ جب وہ صرف 1 سال کی تھیں تب ان کے والد ملک عمر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 1 سال کی معصوم بچی کو شاید یہ بھی نہیں پتا تھا کہ باپ ہوتا کیا ہے۔ یہی سب سے بڑا درد ہے جو عائشہ نے زندگی کے پہلے لمحے سے اٹھایا۔ ان کی والدہ بشرا عمر نے اپنے دونوں بچوں کو اکیلے پالا۔ بشرا عمر ایک استاد اور ایک ماہر تعلیم تھی اور انہوں نے اپنے کاندھوں پر پورے گھر کا بوجھ اٹھایا۔ عائشہ خود کہتی ہیں کہ ماں نے کبھی ایسا محسوس ہونے ہی نہیں دیا کہ ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں۔ یہ وہ قربانی ہے جو عائشہ آج بھی آنسوؤں سے یاد کرتی ہیں۔ اس مشکل بچپن نے عائشہ کے اندر ایک ایسی آگ جلا دی جو انہیں کبھی رکنے نہیں دیتی تھی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور گرامر اسکول سے حاصل کی اور اسکول کے زمانے سے ہی تھیٹر، رقص اور اداکاری کی دنیا نے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسکول کے بعد انہوں نے پاکستان کے سب سے باوقار ادارے نیشنل کالج آف آرٹس میں داخلہ لیا اور وہاں سے نہ صرف گریجویشن بلکہ مصوری میں ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کی۔ حیران کن بات یہ کہ اداکاری سے پہلے عائشہ کا پہلا عشق مصوری تھا۔ وہ اپنے رنگوں سے دنیا بنانا چاہتی تھیں اور آج بھی جب وقت ملتا ہے تو وہ کینوس پر اپنی روح کے جذبات اتارتی ہیں۔ جب عائشہ صرف 8 سال کی تھیں، 8 سال، جب بچے گڑیوں میں مگن ہوتے ہیں، تب انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے بچوں کے پروگرامز میں میرا بچپن کے دن کی میزبانی کی۔ جی ہاں، میزبانی، یہ ان کی پہلی ٹیلی ویژن پر نمائش تھی اور اس وقت کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ 8 سالہ بچی کتنا بڑا سفر طے کرے گی۔ کالج کے دوران انہوں نے ماڈلنگ کی دنیا میں بھی قدم رکھا اور کرکرے، ہارپک، کیپری، پینٹین اور زونگ جیسے بڑے بڑے اشتہارات میں اپنا چہرہ دکھایا۔ سن 2000 کے لگ بھگ پاکستان ٹیلی ویژن پر کالج جینز سے باقاعدہ اداکاری کا آغاز کیا اور پھر کون جیسے نفسیاتی ڈرامے میں بھی کام کیا۔ ہر کردار کے ساتھ ان کی اداکاری نکھرتی جا رہی تھی، ان کا اعتماد بڑھتا جا رہا تھا اور ناظرین ان کی صلاحیت کو پہچاننے لگ گئے تھے۔ سن 2009 میں وہ لمحہ آیا جس نے عائشہ عمر کو پاکستان کے ہر گھر کا حصہ بنا دیا۔ ARY ڈیجیٹل پر بلبلے شروع ہوا اور اس کے ساتھ پیدا ہوا ایک ایسا کردار جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، خوبصورت کا کردار۔ یہ ہیرا فساد کی جڑ ہے، اسے پولیس میں دے دیتے ہیں۔ چپ ہے۔ عائشہ نے اس کردار کو اپنی روح پھونک کر جیا۔ ان کی ادائیں، ان کا انداز، ان کا بے وقت رونا اور ہنسنا، یہ سب گھر گھر کا حصہ بن گیا۔ بلبلے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا مزاحیہ ڈرامہ بنا اور آج تک کوئی اس کا ریکارڈ نہیں توڑ سکا۔ سن 2012 میں زندگی گلزار ہے میں فواد خان کے ساتھ سارا کا سنجیدہ کردار ادا کیا جو پاکستان اور بھارت دونوں میں چھا گیا۔ سن 2011
2012 में मौसीकी की दुनिया में भी कदम रखा। चलते चलते और खामोशी जैसे गानों पर मुश्तमिल एल्बम रिलीज किए और लक्स स्टाइल अवार्ड्स में बेहतरीन एल्बम का एजाज अपने नाम किया। सन 2015 में कराची से लाहौर से फिल्मी दुनिया में कदम रखा, जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद मकबूल रही। सन 2017 में जलगार में जरमीना का किरदार अदा किया और सन 2018 में न्यूयॉर्क फैशन वीक में मेबेलिन की नुमाइंदा बनकर पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में लहराया। सन 2021 में तमग़े फ़ख्रे पाकिस्तान से नवाजा गया और सन 2024 में टकसाली गेट में बतौर अदाकारा और प्रोड्यूसर एक नई तारीख रकम कर गई। और अब आते हैं इस कहानी के हिस्से पर जो शायद आपने इससे पहले इस तरह नहीं सुनी। आयशा उमर के वो तूफान जो पर्दे के पीछे से आए और जिन्होंने उनकी जिंदगी को हिला कर रख दिया। पहला तूफान आया सन 2020 में, जब आयशा की जाती और निजी तस्वीर जो उन्होंने किसी छुट्टी के दौरान खिंचवाई थी इंटरनेट पर लीक हो गई। ये तस्वीर बगैर उनकी इजाजत के फैलाई गईं और देखते ही देखते पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गईं। उस वक्त आयशा ने खुद बयान दिया कि मेरी दुनिया उजड़ गई थी, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, मुझे लगता था मेरा सब कुछ खत्म हो गया। वो इस सदमे से इतनी टूट गई थी कि उन्हें ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ा। वो शदीद उदासी और घबराहट में चली गई थी और महीनों तक इस तकलीफ से निकलने की कोशिश करती रहीं। और उन्होंने बाद में मोमिना मुस्तक के प्रोग्राम में आंखों में आंसुओं के साथ बताया, जब वो तस्वीर लीक हुई तो मैं अंदर से बिल्कुल टूट गई थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे तकलीफ दे दौर था। आज भी जब वो ये बात करती हैं तो उनकी आवाज़ कांपती है, क्योंकि ये दर्द वक्त के साथ ख़त्म नहीं होता, बस दब जाता है। दूसरा तूफान आया तो वो और भी गहरा था। सन 2020 में आयशा उमर ने पाकिस्तानी तारीख का सबसे बहादुराना इतराफ़ किया। उन्होंने अमरीकी अदाकारा रोज़ मैकवान, जो कि खुद दुनिया की सबसे बड़ी हरासानी मुखालिफ तहरीक की सरखेल हैं, के साथ एक गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि जब वो सिर्फ 22-23 साल की थीं और शोबिज़ में नई आई थीं, तब पाकिस्तानी सनत के एक बहुत ताकतवर शख्स ने उनके साथ जिनसी हरासगी की। ये वो सया तजर्बा था जो उन्होंने 15 सालों तक अपने सीने में दफन रखा, ना किसी को बताया, ना किसी से मदद मांगी, क्योंकि वो डरी हुई थी। उन्होंने कहा, वो मुझसे दुगनी उम्र का ताकतवर मर्द था, मैं नई आई थी, मुझे डर था कि अगर बोलूँगी तो मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा। ये इंकशाफ पाकिस्तानी शोबिस की दुनिया में भौचाल ले आया। हर तरफ बहस शुरू हो गई कि आखिर वो ताकतवर शख्स है कौन। और फिर आया तीसरा तूफान, सन 2022 का वो लम्हा जिसने पाकिस्तानी शोबिस को 2 हिस्सों में बांट दिया, जब आयशा उमर ने अपनी हरासानी की कहानी दोबारा अवामी तौर पर बयान की तो पाकिस्तान के एक मशहूर और सीनियर अदाकार नुमान इजाज ने बराह रास्त टेलीविजन पर उन पर हमला कर दिया और कहा कि इतने सालों बाद अब क्यों बोल रही हो, गोया जुल्म सहने वाला अपना दर्द बताए तो भी गलत है और ना बताए तो भी गलत है। इस वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। एक तरफ नुमान इजाज थे, दूसरी तरफ लाखों लोग जो आयशा उमर के साथ खड़े थे। माहिरा खान, सजल अली, मोमिना मुस्तक समेत पूरी सनत ने आयशा का साथ दिया और नुमान इजाज को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। आयशा ने इस दबाव के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और कहा, मैं खामोश नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरी खामोशी हर उस औरत के लिए खतरनाक है जो अभी भी खामोश है। चौथा तूफान आया सन 2023 में, जब आयशा उमर ने खुलकर पाकिस्तानी सनत की मुनाफकत का पर्दा चाक किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जो अदाकार या अदाकारा सच बोले, जो माशरे के ममनू मौज़ूआत पर बात करे, उसे सनत में काम मिलना बंद हो जाता है। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी सनत में अगर आपने आवाज़ उठाई तो आपको काम से बाहर कर दिया जाता है। ये वो सच है जो कोई नहीं बोलता। उन्होंने सनत में नस्ली इम्तियाज, पैसे की बुनियाद पर किरदार मिलने और ताकतवर लोगों के आगे झुकने की सकाफत को भी बेनकाब किया और ये सब कहने के लिए बेपनाह हौसला चाहिए होता है, जो सिर्फ आयशा उमर के पास था। पांचवा और सबसे ताज़ा तूफान आया
सन 2025 में जब उनका रियलिटी प्रोग्राम लाजवाल इश्क नशर हुआ तो पाकिस्तानी नाजरीन ने एक बड़ी तादाद में इस मौजू पर एतराज उठाया और पैमरा तक शिकायत पहुंचाई। पैमरा ने इस मामले का नोटिस लिया और प्रोग्राम को पाकिस्तान में यूट्यूब से हटा दिया गया। आयशा ने इस पर वजाहत देते हुए कहा कि वो किसी भी समाजी हद को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी। ये एक तख्लीकी तजर्बा था, मगर पाकिस्तानी माशरे ने इसे कबूल नहीं किया और ये तनाज़ा काफी अरसे तक गर्म रहा। ये तमाम तूफानों के बावजूद आयशा उमर ने कभी हिम्मत नहीं हारी और यही वो चीज है जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती है। सन 2026 में जब वसीम बदामी के प्रोग्राम मासूमाना सवाल में वो अपनी हरासानी का किस्सा एक बार फिर बयान कर रही थी तो वो बराह रास्त टेलीविजन पर रो पड़ी और बाद में उन्होंने अपने पैरोकारों को पैगाम दिया, मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज सुनकर जिन्होंने कभी जुल्म सहा हो वो थोड़ा कम अकेला महसूस करें और थोड़ा ज्यादा हौसला पाएं। ये वो जुमला है जिसने लाखों औरतों को ताकत दी। आज सन 2026 में आयशा उमर 44 साल की हो चुकी हैं, मगर उनकी तवानाई, उनका शौक और उनकी जुर्रत पहले दिन जितनी है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। उनके इंस्टाग्राम पर 60 लाख से ज्यादा चाहने वाले हैं। वो अदाकारा हैं, मॉडल हैं, गुलकारा हैं, मुसव्वर हैं, प्रोड्यूसर हैं और लाखों खामोश आवाजों की जबान है। जाती जिंदगी में शादी नहीं हुई, मगर उनका सफर अकेले चलकर भी जारी रहा क्योंकि उनकी माँ उनकी सबसे बड़ी ताकत है और उनका फन उनकी सबसे बड़ी दौलत है। आयशा उमर की कहानी हमें ये सबक देती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलात आए, बाप का साया ना हो, निजी तस्वीर लीक हो, ताकतवर लोग जुल्म करें, पूरी सनत खामोश रहे, माशरा तनकीद करे, मगर अंदर एक चिंगारी हो तो वो एक दिन आंधी बन जाती है। एक साला यतीम बच्ची से लेकर पाकिस्तानी शोबिस की सबसे बहादुर और बावकार आवाज तक ये सफर आसान नहीं था, मगर आयशा उमर ने हर कदम पर साबित किया कि वो टूटी नहीं बल्कि और मजबूत होती जाती हैं। और आज भी अगर कोई बच्चा टेलीविजन ऑन करता है तो खूबसूरत की आवाज सुनता है। जब भी कोई औरत जुल्म के खिलाफ बोलने का हौसला उठाती है, वहां कहीं ना कहीं आयशा उमर का असर होता है। यही है आयशा उमर, पाकिस्तानी शोबिस की वो रोशन और बहादुर सितारा जो कभी बुझने वाली नहीं। इस हवाले से आप लोग क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा।